Hello students, welcome to Simply Biology. In today's lecture, we are going to discuss about slime molds, which comes under division Myxomycota in Fungal Kingdom. Now first, let's have a look on the classification system. Now this classification system is proposed by Ainsworth. Now here, kingdom fungi is divided into two divisions on the basis of presence or absence of the plasmodium-like body. So like plasmodium-like body is the slimy body which mainly amoeba possess. That is why these organisms have given the name slime molds due to the presence of plasmodium-like body. So the kingdom fungi, they are divided on the basis of either their body is plasmodium-like or not. They are divided into Myxomycota and Eumycota. So in Myxomycota, plasmodium और pseudoplasmodium is present. Myxomycota जिनमें हमने slime molds को डिस्कस करना है. Slime molds किस डिवीजन में आ रहा है? Myxomycota, क्योंकि इनमें कैसा है? Plasmodium like body present है. Now Eumycota, U का मीनिंग हो गया true and mycota means fungi. So Eumycota, here plasmodium or pseudoplasmodium like body is absent. यहाँ पे the assimilative phase, which is also known as the vegetative phase, is typically filamentous. Now let's have a look on the Myxomycota division. Now this division is further divided into four classes. Now the division Myxomycota is divided into four classes: Acrasiomycetes, Hydromyxomycetes, Myxomycetes, and Amodiophoromycetes. About these classes we are going to discuss in the further slides. Now coming to the division Eumycota, the division Eumycota is also divided in 5 subdivisions on the basis of the formation of sexual और asexual spores. जो division Eumycota है, Eumycota means true fungi, तो यहाँ पे इन ये sexual या asexual spores produce करते हैं. इनके basis पे they have been divided into Mastigomycotina because they produce zoospores, Zygomycotina because of the presence of zygospores, Ascomycotina because of the presence of ascospores, Basidiomycotina presence of basidiospores, and Deuteromycotina. Here sexual reproduction is not known. Among these 5 subdivisions, the division Deuteromycotina and Deuteromycetes have taken into account in the previous lecture. Now we will study on the introduction of the Myxomycota. So here in this particular video lecture, we are going to cover the Myxomycota division, particularly slime molds. Now these are characterized by the presence of plasmodium or a pseudoplasmodium like body. Plasmodium means जिनकी body amoeba like है, slimy body है. Now they possess the characteristics of both animals and fungi because they have the nutrition is holozoic type, means absorptive mode of nutrition, and they have a fruiting body which is fungal like. Anton de Berry termed these group as Mycetozoa, which means fungal animals due to the presence of naked cells and phagotropic mode of nutrition. Phagotropic mode of nutrition means engulf mode of nutrition, absorptive mode of nutrition, and naked cell means cell without the cell wall. Now एंटोन डी बेरी के अकॉर्डिंग इन्हें माइसीटोजोआ कहा जाता है क्योंकि इनमें नेकेड सेल्स प्रेजेंट है और फैगोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट है. एंटोन डी बेरी इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ mycology and plant pathology. Now again, they have been divided into 4 classes. Acrasiomycetes, this is the assimilative phase. Here is free living amoeba. जो assimilative phase है यानी कि जो vegetative phase है वो free living amoeba है
और ये एग्रीगेट होती है टू फॉर्म सूडोप्लाज्मोडियम। एक सूडोप्लाज्मोडियम लाइक स्ट्रक्चर बना के ये इनकी जो फ्री लिविंग बॉडी है एग्रीगेट होती है रिप्रोडक्शन से पहले। सेकेंड क्लास इज हाइड्रोमिक्सोमाइसीट्स, यहाँ पे प्लाज्मोडियम स्लाइमी नेटवर्क फॉर्म करता है। देन इज मिक्सोमाइसीट्स, इट इज ट्रू प्लाज्मोडियम फ्री लिविंग सेप्रोफिटिक। ठीक है, मिक्सोमाइसीट्स विच this myxomycetes class we are going to discuss in detail here in this particular video lecture. So myxomycetes क्या है, इनके पास क्या है, ट्रू प्लाज्मोडियम है, क्योंकि इनमें इसीलिए इनको क्या कहा जा रहा है, स्लाइम मोल्ड्स कहा जा रहा है। मिक्सोमाइकोटिना के अंदर जो मिक्सोमाइसीट्स क्लास है, दे possess true plasmodium, that is why they are known as slime molds. Then the fourth class is plasmodiophoromycetes, and here the plasmodium is parasitic within the cells of the host plant. Now we will study about the class Myxomycetes. इस क्लास के मेंबर्स को बोलते हैं ट्रू स्लाइम मोल्ड्स, बिकॉज इनकी जो प्लांट बॉडी है इट इज फ्री लिविंग प्लाज्मोडियम। दे कॉमनली अकर ऑन दी मॉइस्ट डिकेइंग वुड, ये जो होते हैं ये कॉमनली मॉइस्ट डिकेइंग वुड में प्रेजेंट रहते हैं। Asexual reproduction is here by the means of binary fission of Myxamoeba or the fragmentation of Plasmodium. तो यहाँ पे asexual reproduction binary fission के थ्रू होता है, like as in case of amoeba, and fragmentation के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द फ्यूजन ऑफ मिक्सअमीबा, ये जो इनका मिक्सअमीबा है इन्हीं को हम जूस्पोर्स कह रहे हैं। तो जूस्पोर्स के फ्यूजन के थ्रू यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जो कि आगे चल के बनाएगा जाइगोट, एंड विच विल फॉर्म अ प्लाज्मोडिया या स्लाइमी बॉडी बनाएगा, जिसको हम स्लाइम मोल्ड कहेंगे। नेक्स्ट इसमें जो ऑर्डर आता है वो है फाइजरेल्स। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस ऑर्डर फाइजरेल्स इज प्रेजेंस ऑफ एबंडेंट लाइम। यहाँ पर जो स्पोरेंजियम है जो और जो ब्राउन कलर के स्पोर्स ये इन क्लास के मेंबर्स बिलोंग फॉर्म करते हैं, उनमें क्या प्रेजेंट होता है, लाइम की प्रेजेंस होती है। सो प्रेजेंस ऑफ लाइम is the characteristic feature of the order Physareus. Now the assimilative phase or vegetative phase is known as Phaneroplasmodia. इसमें जो families आती हैं they are Physaraceae and Didymetaceae. Among them we will discuss Physaraceae family here in detail. So the family Physaraceae, they have plasmodial slime molds, and यहाँ पे भी जो granular lime है वो पेरिडियम और कैपिलिशियम में present होता है। So now what are these पेरिडियम and कैपिलिशियम? We are going to discuss in further slides. Now this is the genus Physarum. As you can see, ये slimy mold-like body form करता है, slimy body form करता है। It comes under Kingdom Mycota, division Myxomycota, class Myxomycetes, order Physareales, and the family Physaraceae. Now we come to the life cycle of Physarum. It is consisting of two phases. First one is vegetative and other one is the reproductive phase. The vegetative phase is represented by diploid plasmodium. So again, it is a very important point. The vegetative phase of plasmodium or the vegetative phase of Myxomycetes is represented by the diploid plasmodium. So here, vegetative phase, it is represented by free living irregularly shaped mass of slimy protoplasm with several nuclei embedded in it. तो ये प्लाज्मोडियम का डेफिनेशन भी है, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि जो वेजिटेटिव फेज है वो किससे रिप्रेजेंट करी जाती है, प्लाज्मोडियम के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती है। तो ये प्लाज्मोडियम क्या है, फ्री लिविंग इरेगुलरली शेप्ड मास ऑफ स्लाइमी प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म स्लाइमी प्रोटोप्लाज्म का मास है। दिस प्लाज्मोडियम इज एसेल्युलर which is formed by the repeated division of the diploid nucleus of the zygote. अब acellular कहने का मतलब क्या है, इसमें प्रॉपर सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती, क्योंकि स्लाइमी है तो सेल वॉल इसमें नहीं प्रेजेंट होती है। और ये कैसे फॉर्म होता है, बाय द रिपीटेड डिविजन्स ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियस। जो जाइगोट में डिप्लॉयड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसमें रिपीटेटिवली डिविजन्स होंगे, जिसकी वजह से प्लाज्मोडियम फॉर्म होगा। Now this plasmodium increases in size and it gets organized into fan-shaped reticulate yellow-colored masses, as you saw in the
पिक्चर ऑल्सो, ये किसके तरह था, फैन शेप का स्ट्रक्चर ये बना रहा है। और फैन शेप का स्ट्रक्चर ये कैसे बना रहा है, क्योंकि इसका जो प्लाज्मोडियम है वो इंक्रीज हो रहा है और येलो कलर के मास में ऑर्गेनाइज हो रहा है। इस तरीके के प्लाज्मोडियम को कहते हैं फेनेरोप्लाज्मोडियम टाइप, फेनेरोप्लाज्मोडियम। और जिस टाइम पे फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, फेवरेबल कंडीशंस मींस उसको प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर लाइट मिलती है, तो ये जो फेनेरोप्लाज्मोडियम है ये फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट होने लग जाता है। फ्रूटिंग बॉडी मीन्स, फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है, किसी भी फंजाई का स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। ये मैंने आपको पहले भी बताया है जब फंजाई की हम जनरल डिस्कशन वाली क्लास में। तो ये जो फ्रूटिंग बॉडी है ये क्या ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये फेवरेबल कंडीशंस में जो उसका फेनेरोप्लाज्मोडिया है फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है और स्पोरुलेशन स्टार्ट करता है। नेक्स्ट इज, जब इसमें अनफेवरेबल कंडीशंस देखने को मिलती है, तो अनफेवरेबल कंडीशंस में जो प्लाज्मोडियम है वो स्पोरुलेट ना करके स्क्लीरोशिया फॉर्म करते हैं। दिस स्क्लीरोशिया, व्हाट इज स्क्लीरोशिया, स्क्लीरोशिया डार्क थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं। स्क्लीरोशिया दे आर दी डार्क थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स जो कि अनफेवरेबल कंडीशंस में प्लाज्मोडिया फॉर्म करता है। तो फेवरेबल कंडीशंस में ये स्पोरुलेट करेगा, फंगल स्पोर्स बनाएगा, और अनफेवरेबल कंडीशंस में ये स्क्लीरोशिया बनाएगा। Now during sclerotial development, the plasmodium is cleaved into numerous bits which are known as spherules, and finally a thick two-layered wall is formed around each bit. स्क्लीरोशियल डेवलपमेंट के टाइम पे ये जो प्लाज्मोडियम है ये क्या बनाएगा, स्पिरूल्स बनाएगा। स्पिरूल्स जो छोटी छोटी बिट्स लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा विच आर नोन एज स्पिरूल्स। और फिर ये जो स्पिरूल्स है इनके चारों तरफ से एक थिक वॉल फॉर्म होगी और ये फिर ये क्या बना देंगे, नया ऑर्गेनिज्म बना देंगे। जो स्क्लीरोशियम है, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट स्क्लीरोशियम इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिप्लॉयड सेल्यूलर स्टेज। जो स्क्लीरोशियम है ये प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में स्क्लीरोशियम डिप्लॉयड सेल्यूलर स्टेज बनाता है। दिस स्क्लीरोशियम रिमेन्स डॉर्मेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, एंड जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये वापस से प्लाज्मोडियम बनाता है। सो जो स्क्लीरोशिया और जो स्पिरूल्स हैं, स्पिरूल्स क्या है, स्क्लीरोशियम का एग्रीगेशन, या जो स्क्लीरोशियम डेवलपमेंट के टाइम पे प्लाज्मोडियम छोटे छोटे बिट्स में कन्वर्ट हो जा रहा है, उसे बोल रहे हैं स्पिरूल्स। और ये क्या बनाएंगे, स्क्लीरोशिया और स्पिरूल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पेरिनेशन, यानी कि जो एडवर्स कंडीशन को, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो एडवर्स कंडीशन को टॉलरेट कर सकते हैं, एडवर्स कंडीशन को पास कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू इट्स रिप्रोडक्टिव फेज, तो रिप्रोडक्टिव फेज कब आएगी, जब फेवरेबल कंडीशंस होंगी। तो ये जो फेनेरोप्लाज्मोडियम है ये किस में बदल जाता है, रिप्रोडक्टिव फेज में बदल जाता है। दिस एंटायर प्लाज्मोडियम इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूटिंग बॉडी, और यहाँ पे जो फ्रूटिंग बॉडी है उसको बोला जाएगा स्पोरोफोर या स्पोरेंजियम। जो पूरा पूरा प्लाज्मोडियम है गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रूटिंग बॉडी विच इज नोन एज स्पोरोफोर या स्पोरेंजियम। अब ये जो स्पोरेंजियम है इसके चारों तरफ से एक स्लाइमी नॉन सेल्यूलर लेयर आएगी जिसे बोला जाएगा पेरिडियम। इनिशियली मैंने आपको बताया था कि इसमें पेरिडियम और कैपिलिशियम प्रेजेंट होता है, और पेरिडियम और कैपिलिशियम में क्या प्रेजेंट होता है, लाइम की प्रेजेंस होती है। ठीक है, जो ये ऑर्डर फाइजरेल्स और फैमिली फाइजरेसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनमें डिपोजिशन होगा लाइम का, कहाँ पे, पेरिडियम और कैपिलिशियम। तो पेरिडियम क्या है, जो इसका स्पोरेंजियम है या जो इसकी फ्रूटिंग बॉडी है उसके चारों तरफ से क्या रहेगा, एक नॉन सेल्यूलर लेयर रहेगी जिसे कहेंगे पेरिडियम, यानी कि जो स्पोरेंजियम है वो पेरिडियम के अंदर एनक्लोज्ड है। ठीक है, और इसमें जो स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, अब स्पोरेंजियम के अंदर क्या है, स्पोर्स है, तो स्पोरेंजियम के बाहर से क्या लेयर आ गई, पेरिडियम आ गई, और स्पोरेंजियम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये क्या बनाएंगे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करेंगे जिन्हें हम बोलेंगे कैपिलिशियम। जो स्पोर्स है, फाइजेरम में जो स्पोर्स है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स के बीच में प्रेजेंट रहेंगे। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको कहा जा रहा है कैपिलिशियम, उसके बीच में प्रेजेंट रहेंगे। अब इस कैपिलिशियम का फंक्शन क्या है, इट एक्ट एज एन एंडोस्केलेटन व्हिच प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्पोरेंजियम, it act as a conducting system and it also assists in the spore dispersion. Now spores कैसे हैं इसके, now spores they are the haploid unicellular
ग्लोबोस, स्मूथ, स्पाइनी एंड थिकन वॉल्ड। अब ये जो स्पोर्स हैं दे आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स, रेन एंड माइट्स, और इनकी जो वायबिलिटी है यानी कि ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही जर्मिनेट कर सकते हैं। तो जिस टाइम पे फेवरेबल कंडीशंस होंगी तो स्पोर वॉल क्रैक होगी और स्पोर्स जर्मिनेट होंगे। ठीक है, अब स्पोर वॉल क्रैक हो गई, ये जो स्पोर वॉल है क्रैक हो गई, तो इससे क्या निकलेंगे, स्वार्म सेल्स निकलेंगे। स्पोर्स के अंदर से कंटेंट्स निकलते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन इन स्पोर्स को मिलती है तो स्पोर वॉल क्रैक होती है और इसमें से निकलते हैं स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर जिन्हें कहा जाता है स्वार्म सेल्स या मिक्सअमीबा। मैंने आपको बताया था कि इसमें जो मिक्स अमीबा है और जो जू स्पोर्स है उनके फ्यूजन की वजह से आपका क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, तो मिक्स अमीबा क्या है, स्पोर के अंदर जो स्पिंडल शेप के स्ट्रक्चर्स हैं। नाउ दिस ईच स्वार्म सेल या मिक्सअमीबा कहा जाता है ना, तो ईच स्वार्म सेल हैज टू फ्लैजिला एट इट्स एंटीरियर एंड, one is shorter than the other but both are of whiplash type। whiplash means smooth type के यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे फ्लैजिला। तो जो फ्लैजिला है दो एंटीरियर, इसमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट रहेंगे एंटीरियर एंड पे, one will be shorter and other will be larger। Now sometimes these spore germinates and produce amoeboid structure जिसे क्या है कहा जाता है मिक्सअमीबा। ठीक है, now मिक्सअमीबा which are also known as the swarm cells। जिस टाइम पे अबंडेंट मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो उस समय आपके स्वार्म सेल्स बनेंगे। ठीक है, स्पोर को फेवरेबल कंडीशन मिली, स्पोर वॉल क्रैक हुई, स्पोर वॉल क्रैक होने के बाद में क्या हुआ, स्पोर वॉल क्रैक होने के बाद में क्या हुआ, इससे मिक्स अमीबा या फिर स्वार्म सेल्स रिलीज हुए। ठीक है, और अब इन्हीं स्वार्म सेल्स और इन्हीं मिक्स अमीबा के फ्यूजन की वजह से आपका क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। तो जिस टाइम पे अबंडेंट मॉइस्चर कंडीशंस मिलेंगी स्पोर को तो ये स्वार्म सेल्स बनाएगा, और अगर ड्रायर कंडीशंस मिलेंगी मिक्सअमीबा बनाएगा। तो इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि मॉइस्चर कंडीशन में क्या फॉर्म होता है, स्वार्म सेल्स फॉर्म होते हैं, और ड्राई कंडीशंस में फॉर्म होता है मिक्सअमीबा। इन अबंडेंट मॉइस्चर कंडीशन स्वार्म सेल्स आर फॉर्म्ड एंड इन ड्रायर कंडीशंस मिक्सअमीबा इज फॉर्म्ड। Now the swarm cells और mixed amoeba they behave as gametes। ये gametes की तरह behave करते हैं और fuse करते हैं और ultimately क्या बनाते हैं, zygote बनाते हैं। Now the species they may be homothallic और as well as heterothallic। इसके बाद इनमें क्या होती है, प्लाज्मोगेमी। अब कैरियोगेमी तो क्या हो गया, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया। उसके बाद आपकी प्लाज्मोगेमी होगी, देन डिप्लॉयड जाइगोट इनिशिएट होगा। डिप्लॉयड जाइगोट क्या बनाएगा, प्लाज्मोडियम बनाएगा। ठीक है, देन प्लाज्मोडियम कैसे बनेगा, इसमें जब आपके रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स होंगे। So this is the thing which is very understood, but the main point यहाँ पे जो समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या बनेगा, स्पोर्स बनेंगे। सॉरी, फेवरेबल कंडीशंस में यहाँ पे स्पोर्स, जो स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं मिक्सअमीबा में वो आपको दिखेंगे, और स्पोर्स को जब फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो उस समय स्पोर वॉल क्रैक होगी और स्पोर्स से कुछ कंटेंट्स रिलीज होंगे इन द फॉर्म ऑफ स्वार्म सेल्स या मिक्सअमीबा। डिपेंडिंग ऑन कि स्पोर को अगर मॉइस्चर मिल रहा है अबंडेंट तो स्वार्म सेल्स निकलेंगे, ड्राई कंडीशंस मिल रही है तो मिक्सअमीबा मिलेगा। और ये जो स्वार्म सेल्स या मिक्सअमीबा हैं यही आपके गैमीट्स की तरह बिहेव करते हैं एंड फ्यूज करते हैं टू फॉर्म जाइगोट। Now this was all about the Myxomycota class, Myxomycetes and slime molds. So if you like the video, then do like and subscribe to my channel and share it among your friends.